Okay. Hi, good morning, everyone. So, in the previous session, we have done segmentation, targeting, and positioning. So, was that clear to everyone? Is there any doubt to any student? So, if you people want that I should repeat any of the topics, I think so. You people had some doubt in the previous session. Some of the students were having some doubt. So if you people have any doubt, just message me so that I could just repeat that topic in the end of the session. So for today, we'll be doing product decisions. So in product decision, we'll be doing the meaning of the product, dimensions of a product, product classification, like what are the types of different products, concept of product mix, attributes of a product, branding, packaging, labeling, and after sales services, product differentiation. So we'll be doing few topics today in this class and few topics in the next class. So let's just start with what is a product. We have earlier discussed like what do you mean by product? What do you understand by product? Product is an aggregate of various tangible and intangible attributes, symbols, features, and associated facilities that provide satisfaction to the buyer. It is a bundle of utilities and benefits designed to satisfy the needs and the wants of the consumers. According to Philip Kotler, a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption. It includes physical objects, services, personality, organization, and ideas. A product consists of several tangible, intangible attributes such as size, shape, weight, color, package, etc. A product is both what a seller sells and what a buyer buys. Ball pen, car, watch, TV, refrigerator are some examples of a product. So basically, product, we all know that what is a product जिसके tangible और intangible attributes है जो ऑटोमेटिकली जो मार्केटर होता है वो सेटिस्फाई मतलब वो मार्केट को के आगे मतलब हम जो बोलते हैं कि दे पीपल कैन जस्ट ऑफर टू द मार्केट फॉर द यूज फॉर देयर अटेंशन लाइक द products which are all offered in the market are the product of a marketer. So this was a basic definition what a product is. So if you talk about the different types of product, it all includes physical product. We all know pens, laptops, soap, shirts, jeans. All these are the physical products. Blankets. Next we have the services. Services में क्या चीज आएंगी? Dry cleaning services, tailor services, car repair services, painting, जो कारपेंटर होते हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज. So these all are a part of services. Next we have person, film star, politician, sports star. So these are also a product. Organization, WHO, UNICEF, WWF. Next, ideas, non-smoking, family planning, AIDS prevention. Next, experiences, visit to Delhi Heart, visit to Lal Killa, Red Fort. So all these things, all these six are a type of a product that we are talking about. See, in the definition itself, it was mentioning tangible and intangible. Tangible का मतलब क्या होता है? The things that we can touch. इनटैंजिबल का मतलब होता है जो हम टच नहीं कर सकते. तो इसमें इनटैंजिबल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एक्सपीरियंसेस. वी कैन नॉट टच एनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस. आप कहीं घूमने जाते हो उसका एक्सपीरियंस हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते. आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज होते हैं. सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी सीन. हम देख भी नहीं सकते, हम टच भी नहीं कर सकते. टैंजिबल, इनटैंजिबल, द थिंग्स विच वी कैन नॉट टच एंड सी. So it says that a product is much more than a physical or a tangible object. A customer has a generic concept of products. He buys not simply the physical and the chemical attributes of a product, but a whole set of physical psychological satisfactions. For an instance, to the ultimate consumer, a washing machine is not a mere collection of drum, heater, and nuts.
goals, but a comfort that will protect and enhance her self concept. Besides the physical attributes, a product includes package, design, label, brand name, seller's name, warranty, and services offered to the consumer. Thus, a product is like an onion having several layers, each contributing to the total product image. सिंपली है इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर एक ड्रम का अगर हम इसमें एग्जांपल वी जस्ट टेक द सेम एग्जांपल अगर वो ड्रम खरीद रहा है तो उससे उसका ये सैटिस्फैक्शन नहीं है जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसको मिल रहे हैं टैंजिबल चीजें मिल रही है वो ही उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर वो उसी पर्पस के लिए वो चीज नहीं खरीद रहा ही इज बाइंग दैट फॉर हिज और हर सेल्फ कॉन्सेप्ट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज वो खरीद रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल ऐसा नहीं है दैट यू आर सिंपली अगर अब हम एक इफ यू टॉक अबाउट एयर कंडीशनर हम एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है जब हम एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं सिर्फ हम उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं उसके लिए हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि मनी की वर्थ मिलेगी कि हमने वो हमारे किस पर्पस के लिए यूज आ रहा है या हम प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे नेक्स्ट वी हैव द डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट according to Philip Kotler, the total product has three layers or dimensions as shown in figure 7.1. These three dimensions need to be distinguished from each other. So, अब इसमें तीन dimensions क्या होती है जो सबसे पहला होता है इंटरनल जो स्मॉलर सर्कल इट इज द कोर प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं इसको नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट इज सिंबॉलिक प्रोडक्ट सो लेट्स जस्ट रीड कि हर एक प्रोडक्ट की मतलब क्या है हर एक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर प्रोडक्ट इज tangible and intangible features including core benefit or services features design brand name packaging etc ये हम इसके एग्जांपल्स अभी हम बाद में पढ़ेंगे let's just see the definition of core product. The core product covers the physical attributes, basic जो हम product बोलते हैं, tangible और intangible offered for sale. These attributes consist of the materials, quality, weight, design or shape, size, color, style, smell, package, brand name, label, etc. Services like auto repair, bus traveling, electricity supply, management consultancy, legal advice, etc. are the products with intangible features. So the basic core product हो गया जो basic physical attributes है जिसमें आपकी और मेरी कोई self satisfaction include नहीं है. It is just the physical attributes which it covers. Tangible और intangible जो products होते हैं that is being offered for sale. So these attribute consist of the material quality कि उसकी quality क्या है उसका design, shape, smell, packaging, labeling all these things are part of core product. So what it was telling us, it was telling tangible and intangible features, including core benefit or the services feature, design, brand name, package, etc. So these all are the part of core product. Next, we have augmented product. It is a broader conception including the various benefits and services that accompany the core product. It is the totality of benefits that a person receives in buying a product. For instance, along with the TV set, a customer gets a dealer's reputation, warranty, home delivery, free installation, maintenance, instructions for use, etc. This is an important dimension because in competitive market, it provides a plus point to the seller. Neglect of this dimension may result in the failure of a product or loss of sales opportunities. सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या आ गया अब हमारा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेयर क्या है हमारी कोर प्रोडक्ट बेसिक था उसकी नेक्स्ट लेयर है हमारी ऑगमेंटेड सो इसमें क्या क्या चीजें हमारी कोर प्रोडक्ट में तो हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट इंक्लूडेड था खाली नेक्स्ट ऑगमेंटेड में क्या होगा एक ब्रॉडर कंसेप्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें बेनिफिट्स है
जो कोर के अलावा हमें बेनिफिट्स देती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर हम कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं तो उसमें हमने शेप, साइज, ये सारी चीजें जो कोर प्रोडक्ट है वो तो इंक्लूडेड है। उसके साथ हमें क्या चीज मिल रही है, हमें हमें उसकी फ्री इंस्टॉलेशन अगर वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा फ्री इंस्टॉलेशन के अलावा उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हमें इंक्लूडेड है या नहीं है, उसकी वारंटी गारंटी क्या है, उसके रिव्यूज क्या है, ये सारी चीजें क्या है, किस चीज का पार्ट है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। सो दिस प्रोडक्ट कम्स आफ्टर द कोर बेसिक प्रोडक्ट के बाद ये वाला प्रोडक्ट आता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। इन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इट सेज फिजिकल प्रोडक्ट प्लस होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विसेज, credit and other services. So basic was core and next is the augmented product. Next and the last part is the symbolic product. So if we see the soap, हम इसमें ऑगमेंटेशन, अगर हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट देखते हैं उसकी एग्जांपल्स क्या होंगे, हाइजीन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स, ग्लैमर एंड चार्म, वॉशिंग मशीन, कन्वीनियंस, कंफर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, watches, timekeeping, fashion accessories, television, information and entertainment, books, knowledge and education, toothpaste, dental care. So these all are the part of the concept augmentation. सोप्स का बेसिक कोर क्या होगा, हम उसको यूज करते हैं। सोप हमें एक फिजिकल प्रोडक्ट मिल रहा है बट प्लस सर्विसेज, ऑगमेंटेड सर्विसेज होंगी ये सारी। सो दीज आर दी ऑगमेंटेड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द core product. So these are the core product plus the augmented services. Next we have the symbolic product. It is the product as the customer perceives. It is the psychological feeling or expectations of a consumer about the product which influences his decision to buy. To the consumer, a product is actually a symbol or a meaning. For instance, a customer buys a TV set not as a box of components, but as an instrument of entertainment, pleasure, and status. Similarly, a woman buys hope and beauty by purchasing a lipstick. Consumer perception of a product is critical to its success or फेलियर। सिंबॉलिक प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली हमने कोर प्रोडक्ट देखा जिसमें हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। उसके बाहर का ऑप्शन है ऑगमेंटेशन जिसमें हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज। उसके अलावा हमें प्रोडक्ट के अलावा क्या मिल रहा था, दैट वाज देयर। नाउ सिंबॉलिक में क्या होगा कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं कि हम वो हमारी सर्विसेज को कैसे, अगर उस प्रोडक्ट की क्या वो हमें एक सिंबोलिज्म जैसे हम बात करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव करते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे तो उसमें हमारी चीजें ठंडी रह पा रही है नहीं रह पा रही, उस ठंडी मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कोल्डनेस, एक्स्ट्रा आइस तो नहीं आ रही उसमें। उसमें अगर ठंडा हो रहा है तो वो एक अप्रोप्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। सो ये वाला प्रोडक्ट वो है जो कि हमें खुद सबका पर्सनल है। आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, तो किसी थर्ड पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। So automatically these things will be perceived differently by different kind of people. So this is symbolic product. So let's see what was there in that. Symbolic product में क्या होगा, product as perceived by the consumers, जैसे consumer उसको perceive करे। So that was a part of symbolic product. Next we have, let's see, it says that product is the key element of marketing program. Before making decisions about pricing, promotion, and distribution, a firm has to determine what product it will present in the market. In fact, planning and development of marketing mix normally begins with a clear idea of the firm's product or service. Any firm that markets product or services has two aims to achieve.
consumer satisfaction, and the profit maximization. Needless to say, the latter is dependent on the former. The medium through which the firm attains these dual objectives is the product. It follows, therefore, the individual preferences for specific goods and services are ultimate determinants of the structure economies and of relative success enjoyed by the organization within these economies. So basically, कंज्यूम हम अगर मार्केटर की बात कर रहे हैं तो उसके दो ड्यूअल एम होते हैं, हम अगर बात कर रहे हैं दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो दी ये दोनों चीजें कौन हमें प्रोवाइड करेगा? जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको हमने सेल के लिए पुट किया हुआ है। यू पीपल हैव सम डाउट्स? मैम, गुडविल भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट में इंक्लूड है ना? डेफिनेटली यस। ऑगमेंटेड और सिंबॉलिक में क्या फर्क है? सी फरीन, द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हमारा हो गया जो आफ्टर सेल सर्विसेज, जो आपके लिए भी सेम होगा, जो मेरे लिए भी सेम होंगी सर्विसेज। वारंटी आप भी खरीदोगे रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए हो सकता है आपका टेलीविजन खरीदने का पर्पस, आप उस टेलीविजन को किसी और तरीके से परसीव करते हैं और मैं एक तरीके से परसीव करती हूँ कि मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का बेसिस है। आप ये परसीव करते हो नहीं, दैट इज जस्ट यूजलेस, आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, इज जस्ट अ मेयर पीस ऑफ अ बॉक्स, दैट्स इट। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस। सिंबॉलिक में एक इंटेंजिबल पोर्शन आ जाएगा, ऑगमेंटेड में आपका टैंजिबल है कि आप वारंटी आपको कितनी मिल रही है आपको, दैट वुड बी सेम फॉर ईच ऑफ अस। हिंदी का तो यार आई हैव नो आइडिया, यू पीपल हैव टू आस्क, आई जस्ट चेक विद इट। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। What are the different types of product? Products may be classified as follows. Consumer product. These products are meant for final consumption and are not for further use or sale. The consumer products are of three types. Convenience product. These products are purchased frequently, immediately, and with minimum of efforts. They are meant for personal convenience. Newspaper, cigarettes, toothpaste, soap, tea, etc. are the example of convenience product. Convenience product कौन से होंगे? जो हम डेली रोज रोज अगर हम बात करते हैं रोज खरीदने वाली चीजें, सो वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जिसमें हम अपना कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे डेली। अगर हम सोप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो हमें पता है हमें कौन सा ब्रांड खरीदना है, तो हम उसमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, हम जल्दी खरीद लेते हैं और उसका हमारे लिए हम उसमें कोई खास हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट में, सिर्फ वो जल्दी फ्रीक्वेंटली इमीडिएटली खरीदने वाले प्रोडक्ट्स है विद जीरो मिनिमम एफर्ट्स। सबका डिफरेंट है, आपके लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा ब्रांड होगा, मेरे लिए एक दूसरा ब्रांड होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस मतलब जो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, जिसमें आप एफर्ट्स नहीं डालते, टाइम जल्दी खरीद लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट परचेज होती है, प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। Shopping products क्या होगा? These products are purchased after comparative analysis of quality, price, warranty, etc. of a competitive brand. Furniture, clothing, TV, fridge, washing machines, scooters are the example of such products. Consumers spend time and efforts to compare several alternatives. अब शॉपिंग में क्या होगा? अब हम कंपैरिजन करेंगे। शॉपिंग प्रोडक्ट्स हम कभी-कभी खरीदेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हमें डेफिनिटली टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टेलीविज़न खरीदते हैं, तो इसमें ऑटोमैटिकली हम डिफरेंट ब्रांड्स देखेंगे कि क्या-क्या ब्रांड अवेलेबल है, क्या-क्या प्राइस अवेलेबल है, किसकी क्या वारंटी है। तो सब में एक अलग डिफरेंशिएशन आ जाएगा कि क्या-क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी है या फिर हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो एक कंपैरिजन करेंगे जिसमें कि कंपैरिजन करेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली परचेज गुड्स नहीं है ये हमारे,
अगर हम कन्वीनियंस में बात कर रहे थे फ्रीक्वेंटली, सो दीज आर नॉट फ्रीक्वेंटली परचेज गुड्स, इमीडिएटली भी हम नहीं खरीदते और एफर्ट्स भी हमारे लगते हैं, बिकॉज इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं. So these are the shopping products which says that these are the examples of such products consumers spend time and efforts to compare the several alternatives. Next is specialty products. These products are purchased with minimum efforts. Jewelry with special efforts, jewelry, fancy items, computers are the example of these products. Consumers have brand preferences and are willing to go out of the way to acquire the preferred brand. स्पेशलिटी में क्या होगा कि हमारे एफर्ट स्पेशल होंगे, बिल्कुल भी फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, विद लॉट ऑफ इसमें एफर्ट हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम लग्जरी ब्रांड्स बोलते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं. सो दीज आर द स्पेशलिटी. हो सकता है आपके लिए लग्जरी ब्रांड गुची अरमानी हो, मेरे लिए लग्जरी ब्रांड कोई और हो. मेरे लिए लग्जरी ब्रांड, इफ आई जस्ट राइट लुई फिलिप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्क एवेन्यू, मेरे लिए वो स्पेशलिटी, मेरे लिए वो लग्जरी ब्रांड है. So for you, some luxury brand would be different. For me, the luxury brands are different. So हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग डिफर करेंगे. तो हम उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं और हम बहुत कंपैरेटिव होके बहुत अच्छे से सब चीजें देख के तभी इन गुड्स को खरीदते हैं. सबसे पहले कौन सा था हमारा? कन्वीनियंस, फिर शॉपिंग और फिर स्पेशलिटी. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? These are the products purchased for use in production of other goods. Raw material, components, machinery are the industrial products. Industrial products are of following type. So industrial product की हम किस चीज की बात कर रहे हैं? That these goods are किसके लिए? एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, कंपोनेंट्स होते हैं, मशीनरी का पार्ट होता है. सो जिस जो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अब इसके डिफरेंट डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन क्या क्या है, लेट्स सी दैट. सो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल्स. These include natural and farm products such as wheat, cotton, milk, coal, etc. Sugarcane used in manufacturing sugar and cotton used in producing cloth are the example of raw material. So let's see what are the types of consumer goods. अभी let's see the industrial and then we will see कि हमारे कंज्यूमर गुड्स जो हमने ऊपर किया है इसका टेबल हम अभी देखते हैं. Next we have supplies. These includes nuts, bolts, lubricating oil, heating fuel, typewriter, ribbons, etc. Supplies do not become a part of finished product but are required for manufacturing. So ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, जो सप्लाई होते हैं. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है हमारी? नट्स, बोल्ट्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल, टाइपराइटर, रिबन्स, जो एक दूसरे प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर की तरह यूज होता है. रॉ मटेरियल में क्या हमने देखा था? इसमें फार्म नेचुरल प्रोडक्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स है. शुगर केन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड कॉटन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ. सो दीज आर द नेचुरल एंड द फार्म प्रोडक्ट्स, वेयर एज इन सप्लाईज ये सारे नॉर्मल है जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं. Next, we have accessory equipments. These includes typewriter, calculators, small ladders, portable drills, etc. These are of low capital value. Next, we have installation. These includes heavy machinery, factory sites, trucks, and other items of high value. So, installation में क्या चीज हो गई? ये heavy machinery के लिए यूज होंगे,
ट्रक साइट्स हो गई, फैक्ट्री साइट्स हो गई, अदर आइटम्स जो हाई वैल्यू की है, जिसकी एज कंपेयर टू कैपिटल वैल्यू हाई है. So these are the types of industrial goods, and the last part is of industrial good is fabricated parts. इसमें क्या है? These are the product items that become a part of finished product. Tires for automobiles, laces for shoes, mouse for computers, etc. are the examples of fabricated parts. Next, we will see what are the different types of consumer products जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसका बेसिस डिफरेंशिएशन क्या है. So first is it says that characteristic prior knowledge of the product. कन्वीनियंस गुड में क्या होगा? कंसिडरेबल हमें नॉलेज, कंसिडरेबल नॉलेज चाहिए. शॉपिंग गुड में हमें लिमिटेड नॉलेज चाहिए. स्पेशलिटी गुड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, वी जस्ट नीड अ सब्सटैंशियल नॉलेज. Time and effort spent to buy the product. We spend very little time in convenience goods, moderate to high in shopping goods, and very high in specialty goods. Next, we have the comparison of price and quality. None. We don't compare anything in convenience good. Considerable in shopping and none in specialty goods. ऐसा नहीं है आपको एक ज्वेलरी का पीस एक जगह पसंद आता है, ज्वेलरी का पीस दूसरा पसंद आता है, आप उस दोनों को कंपेयर करोगे बिकॉज उसकी मेकिंग डिफरेंट होगी, उसका सेम एक चीज सेम नहीं होगी. सो अगर दोनों चीजें सेम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट कंपेयर. Search of information, little or no search is required in convenience good, very high and low in specialty goods. Frequency of purchase high, moderate, low. हाई कन्वीनियंस गुड बहुत हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, उसके बाद शॉपिंग, और उसके बाद हम स्पेशलिटी गुड्स खरीदते हैं. विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूट्स हाई. हम हो सकता है कोलगेट खरीदते हो बट हमें मेसवाक में शिफ्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट, इन शॉपिंग गुड्स इट वुड बी मॉडरेट एंड स्पेशलिटी गुड इट वुड बी नन. अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन तनिष्क से शॉपिंग करता है ज्वेलरी की, वो तनिष्क से ही करेगा, वो कल्याण या मेहरासन से नहीं खरीदेगा. और अगर वाइस वर्सा, अगर वो एक प्रेफर्ड ब्रांड खरीदता है तो वो प्रेफर्ड ब्रांड ही खरीदेगा, वो उसके अलावा दूसरे ब्रांड पे जल्दी से शिफ्ट नहीं होगा ड्यू टू द फैक्टर कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ पाता. नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द एग्जांपल्स. ये हमने पढ़ लिए हैं. चॉकलेट, टूथपेस्ट, सोप्स कन्वीनियंस का पार्ट है. टीवी, रेफ्रिजरेटर शॉपिंग का. एंड Kenwood, Star Stereo, Rolex watch, Armani suit. So these are the part of specialty goods. So consumer product की एक और हमें टेबल मेंशन है. It says that market consideration, consumer buying behavior in convenience goods products, frequent purchase, little planning, little comparison or shopping effort, low customer involvement. Shopping में less frequent purchase, much planning and shopping effort, comparison of brands on price, quality and style. Strong brand preference and loyalty, special purchase efforts, little comparison of brand, low price sensitivity. It is in specialty. Unsought goods, little product awareness, knowledge, or if aware, little or negative interest. प्राइस, स्पेशलिटी गुड्स सबसे कम प्राइस के होते हैं, फिर उसके बाद हमारे शॉपिंग गुड्स होते हैं, फिर हाई प्राइस होते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स. डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा कन्वीनियंस गुड्स आपको सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड मिलेंगे, सब जगह अवेलेबल होंगे. शॉपिंग गुड्स कुछ सिलेक्टिव जगह पे होंगे. स्पेशलिटी गुड्स बहुत एक्सक्लूसिव जगह पे होंगे, बहुत कम आउटलेट्स होते हैं एक एक मार्केट में. नेक्स्ट, प्रमोशन.
Mass promotion by the producer, advertising and selling by both the producer and the seller, more careful targeted promotion by the both producer and the resellers. So automatically ये सारे हमारे promotion के part हो गए, which the goods जिसके पास जो हमारे पास sellers है convenient shopping और specialty के जो वो यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Next we have what is the concept of product mix. The term product mix refers to all the product or services offered by a firm for sale in the market and the features associated with these products or services. These features include quality, size, design, brand name, package, label, etc. of a product. The nature and the character of a product which constitute product mix differ from one to another. The product mix has several dimensions which are as follows. Mix width. Width of a product mix implies the number of product lines the companies offer for sale. So for the example, we have the product mix of ITC consists of product lines like cigarettes, hotels, ready-made garments and grocery. तो मिक्स विथ का मतलब क्या होता है कि एक ही ब्रांड के क्या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं. अगर हम बात कर रहे हैं आईटीसी की तो आईटीसी रजिस्टर भी बनाता है, आपको पता है क्लासमेट के. वो सिगरेट्स भी बनाता है, वो ग्रोसरी भी बेच रहा है, वो रेडीमेड गारमेंट्स भी बेच रहा है. सो उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, दैट इज कॉल्ड मिक्स विथ. कि उसकी विथ क्या है, उसकी प्रोडक्ट उसकी कितनी लाइंस हैं. Product line, a group of closely related products which perform similar functions are marketed through similar channels but are sold to the same target audience fall within the defined price range. अगर आपको पता हो कि Oberoi's के there are two hotels nearby Trident and and there is one more hotel which is very famous in Oberoi, Villa, उदय विलास. So these are the two brands for Oberoi. दोनों Oberoi ही चलाता है. बस that the main difference is luxury is the Uday Vilas and Trident is the medium range hotels. दोनों 5 स्टार rated है but प्राइस रेंज में डिफरेंस क्यों है, उदय विलास और एक्सट्रीम लग्जरी में आ जाता है. सो प्रोडक्ट लाइन में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट सिमिलर है बट मेन डिफरेंस क्या है, उसका प्राइस रेंज डिफरेंट है. लाइन लेंथ. This means the total number of product items that are offered in a product mix. For example, Maruti offers a number of items in its car line. These includes Maruti 800, Zen, Wagoner, Esteem, Alto, Versa, Baleno, Gypsy, etc. So these are the line width, line length. This means the total कितने products आ रहे हैं of a product items. What are the total number of product items that are offered in the product mix? Next, we have the mix depth. This implies the number of variants that are offered in each product in one product line. For example, Hindustan Unilever offers several variety of Lux soaps in terms of color and size. एक ही प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट्स हैं मार्केट में. तो इसमें इन्होंने सोप का एग्जाम्पल लिया है कि उसका डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट साइजेस आते हैं. तो मिक्स डेप्थ का मतलब मिक्स डेप्थ मीन एक ही प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट्स है, कितनी वैरायटी है. नेक्स्ट वी हैव मिक्स कंसिस्टेंसी. दिस रेफर्स टू द क्लोजनेस between the product line contained in a product mix. The relationship may be in the terms of consumer group, distribution system, needs, and satisfaction.
कि प्रोडक्ट लाइन जो हमारी है, डिफरेंट लाइन, उसकी क्या क्लोजनेस है, कितने ज्यादा वो क्लोजली रिलेटेड है, उनका दोनों का रिलेशनशिप क्या है. सो दैट इज मिक्स कंसिस्टेंसी. So these all are the part of what is a product mix. उसके different parts हैं कि product mix में क्या क्या चीजें included है. Next we have the attributes of a product. Tangible product क्या होगा? जिसको हम फील कर सकते हैं. फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसका शेप साइज होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं. So that is the tangible product. Next is associated attributes. In addition to the physical features, a product has certain attributes which helps the customers to distinguish it from other products. Package, brand name, warranty, etc. are such associated attributes. So, physical attributes के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? Product has certain attributes which help customers to distinguish it from other products. एसोसिएशन हम जिसकी बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है? पैकेजिंग होगी, ब्रांड नेम हो गया, वारंटी हो गई. सो एसोसिएशन, डिफरेंट टाइप्स. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल. Every product has its life cycle, which consists of introduction, growth, maturity, decline stage. लाइफ साइकिल का मतलब कि उसका प्रोडक्ट फर्स्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन होती है स्टेज. फिर ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेल शेप. इंट्रोडक्शन, धीरे धीरे ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी. मेच्योरिटी में हाईएस्ट सेल होती है, हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी का स्केल हो जाती है. और डिक्लाइन में उस प्रोडक्ट के डिक्लाइन की स्टेज आ जाती है, धीरे धीरे मार्केट से वाइप आउट होने लग जाता है. नेक्स्ट वी हैव द एक्सचेंज वैल्यू. अ प्रोडक्ट हैज समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. कोई भी चीज है उसको हम तब ले सकते हैं जब वो एक मेजरमेंट हो मनी के टर्म्स में. अब बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं. अर्लियर अ बार्टर सिस्टम यूज्ड टू बी फॉलोड. We have need satisfaction. Every product is meant to satisfy some human need. So automatically product अगर satisfaction नहीं provide करेगा तो हम वो नहीं खरीदेंगे. Next we have branding. So the term brand means any identification mark such as trademarks, trade name, symbol, picture, design, color, etc. It is used to identify a product of a seller and to differentiate it from the product of the competitor. ब्रांडिंग आपने देखा होगा, ट्रेडमार्क, डिफरेंट साइन सिंबल्स होते हैं हर एक ब्रांड के डिफरेंट. तो अगर आपको टी शर्ट पे वो सिंबल दिखेगा तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो ये नाइकी का प्रोडक्ट है, ये रीबॉक का प्रोडक्ट है, ये एडिडास का है. तो उनके के सिंबल्स जो अलग होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. उसकी पिक्चर कलर डिफरेंट होते हैं दैट इज नोन एज ब्रांडिंग. और एक जो रजिस्टर्ड ब्रांड होता है इट इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क. डालडा घी, कोलगेट टूथपेस्ट, लक्स soap, Titan watches are the example of brands. Branding is a process of assigning a distinctive name to a product by which it is to be known and remembered. जिससे ब्रांडिंग क्या होगा? एक डिफरेंट हम नाम रख देते हैं अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड का, जिससे कि हर कोई उसे याद कर सके, हर कोई उसे रिमेम्बर कर सके. ऐसा नहीं है कि एक अपीलिंग, आई कैचिंग और इजी होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए जिस वजह से कि कोई उस आपके ब्रांड को याद ही ना रख पाए. नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग.
Branding helps consumers to identify and recognize the product. It simplifies, therefore, purchase and sales and reduces the time and effort involved therein. Branding helps consumers to identify and recognize the product. It simplifies, therefore, purchase and sale and reduces the time and effort involved there. So simple है कि हमें प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करने में हेल्प करेगा, हमारे टाइम बचाएगा, एफर्ट्स बचाएगा कि हम जब भी सेल्स करें या जब भी हम प्रोडक्ट खरीदे तो हमें पता है कि हम कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं. Next is branding is a means to differentiating the product from the competitors' products. The producer can create a marked preference for his product, brand loyalty by constantly repeating the brand name to the public. ब्रांडिंग का बेसिक पर्पस मैंने आपको बताया, आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटर के ब्रांड से अलग आपको पता चलेगा आपका प्रोडक्ट कौन सा है, और जितनी बारी भी वो एडवर्टाइजिंग होगी, जितना शॉर्ट होगा, तो कंज्यूमर के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में वो ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाएगा. Next, we have branding is the basis of advertising and other techniques of mass selling. Gradually, the brand itself it becomes its own advertisement. Dalda, coconut oil, luxury, Lux has become household names because of the brand advertising. Branding helps to minimize the selling cost by reducing the dependence on the middleman. Dealers are ready to handle branded products at lower margins. जितना ज़्यादा आप कंज्यूमर के दिमाग में अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर कर दोगे, उतना ही कम टाइम आपको लगेगा कि आपको जो आपके मिडलमैन है उसको एक ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देना. बिकॉज़ सी, अगर आपका ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, कोका कोला रजिस्टर्ड है, तो उनको कोई मिडलमैन ही नहीं चाहिए एडवर्टाइजिंग के लिए. उसकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है. सो आपको एक मेन कब कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो कि जब आप अपने आपका ब्रांड एक विविडली नोन है, आपके सारे कस्टमर्स को उसके दिमाग में वो ब्रांड नेम रजिस्टर हो चुका है. नेक्स्ट वी हैव ब्रांडिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म standards of quality and design to the customers और consumers. सो एक ब्रांड से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए. एक ही तरीके का, अगर हम क्लॉथ इंडस्ट्री में बात करें, तो दे ट्राई टू कीप देयर क्वालिटी मेंटेन, डिजाइन मेंटेन. अनलेस एंड अनटिल दे डू सो, जो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट वाइप आउट हो जाएगा अगर उसका कस्टमर से ट्रस्ट हट गया तो. नेक्स्ट वी हैव द प्राइसेस ऑफ ब्रांडेड and standardized products are fixed by the manufacturers. They are printed on a product and well known to the customers. As a result, the unscrupulous retailers cannot exploit the consumer by overcharging. Simple कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो होते हैं उसके रेट्स फिक्स करके उसको प्रिंट कर दिया जाता है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं. इससे बियॉन्ड कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल ऑफ नहीं कर सकता. Next, we have branding tends to widen the market as the need for inspection and sample is eliminated. Goods can be sold by description and they can fetch better prices. So, what it is saying that branding से हमारी market बड़ी हो रही है because उसके लिए इंस्पेक्शन और ये सैंपलिंग होती है वो एलिमिनेट हो जाती है. जब हमें पता है कि एक ये पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है तो उसकी हमें इंस्पेक्शन नहीं करने की रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वी हैव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर इनवेरिएबली पैक्ड which prevents adulteration and helps to preserve the quality of a product. A registered brand becomes the exclusive property of its owner and protects him from imitations. See, imitations आजकल फेस प्रोडक्ट में बहुत है मार्केट में.
बट स्टिल ब्रांडिंग से अगर एक रियल ब्रांड हो, ओरिजिनल हो, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, अडल्टरेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दीज आर द डिफरेंट ब्रांड्स। उसके अंदर उसकी कितने क्या क्या चीजें हैं। जिलेट, प्रेस्टो, वेक्टर प्लस, सेंसर एक्सेल, मार्क 3, टर्बो, ओरल बी, प्रूडेंट, ड्यूरासेल इज ऑल द टाइप्स ऑफ। किस ब्रांड नेम के अंदर आएगा? जिलेट। उसकी ये प्रोडक्ट लाइंस होगी। ऐसे ही पीएनजी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, डाबर है, गोदरेज है, ब्रेकेट बेंकाइजर है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, ये इनकी प्रोडक्ट लाइन का पार्ट है। That's it for today. What all doubts you people have, please let me know, and then we will. 1 second, please. यूज त्यागी टाइपराइटर का रिबन, एक्चुअली अगर आपने देखा हो उसके अंदर अलग अलग वो होती है, फिल्म्स होती है, सो हो सकता है टाइपराइटर रिबन वो इसको बोल रहे हो। फरहीन, शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग में आप जैसे हम टीवी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, वो शॉपिंग प्रोडक्ट हो गए, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके हम प्राइस, प्लेस, उसका क्या हमारी क्वालिटी है, हम उसको सबको कंपेयर कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द शॉपिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टाइम आई। अनसॉर्टफुल मी, जिसको आपने सॉर्ट नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते। सॉल्ट है, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ब्रांड नेम अटैच किया जाए। फैब्रिकेटिंग प्रोडक्ट्स सिंपली हम। 1 second। आई एम रेफरिंग टू सीबी गुप्ता, author CB Gupta, the book that I am using। प्रोडक्ट मिक्स एंड कंसिस्टेंसी में कंफ्यूजन है। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी, आई नीड टू सी विच टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, दिस मिक्स कंसिस्टेंसी। सो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक लाइंस है जो आपकी प्रोडक्ट लाइंस है, उसमें कितना वो क्लोजनेस है, कितना डिफरेंशिएशन है, क्या रिलेशनशिप है। अगर हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट में कितनी क्लोजनेस है, कितनी सिमिलर है वो प्रोडक्ट या नहीं है, सो दैट इज क्लोजनेस, कंसिस्टेंसी। फैब्रिकेटेड पार्ट्स होते हैं, दीज आर द आइटम्स that become a part of a finished product। टायर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, लेसेस फॉर शूज। फैब्रिकेटेड सिंपल हो गया, जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट है, इसको हमने और आगे फर्दर उसको हमने और प्रोड्यूस, उसको और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे नहीं डाला, वो रॉ मटेरियल नहीं है, बट वो हमारे फिनिश गुड्स का पार्ट है, सो दैट इज फैब्रिकेटेड। जो ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ वो हम उसको उसमें पुट करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी एक पार्ट दे रखा है। Vivek, Ayush, is it clear? Yes, we have a WhatsApp group. I'll just type in my number. You can just put, "Hi, ma'am. Send me the link." I'll send you the link. Sorry, Abhishek, it's really difficult to get added to your group. You please add the group which is already there. There are already two groups. I have to delete one group.
So only one group would be there for this subject. Please add the recent group only. Preeti, I share these PDFs on your groups only. So you people can just take I've put in my number. You can just take a number and you can put, hi ma'am, I'll send you the link for the group. And in the group, you will find the PDFs. The students who are joining in today won't find the previous PDF, so वो automatically एक दो दिन में I'll ask the other students to put in the same PDFs again. Shami, टायर्स की प्राइस लेवल स्मार्टफोन सेल करती है लाइक लो बजट 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 प्रीमियम. So we would classify these product in convenience, shopping और specialty. ये shopping goods का type होगा. स्पेशलिटी में हम कन्वीनियंस में हमारे यहाँ साबुन तेल सोप कोलगेट इसमें कोई हम एफर्ट्स ही नहीं लगाते जो डेली यूज के आइटम्स हैं जो हम रोज खरीदते हैं रोज यूज करते ही करते हैं सो दैट इज कन्वीनियंस सो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द शॉपिंग गुड्स बिकॉज आप उसमें कंसिडरेबल टाइम लगाओगे उसको आप कंपेयर करोगे आपको कौन सा खरीदना है ब्रांड नेम देखोगे क्लियर हिमांशु I have sent you my number. I cannot send you the group link here. You just add my number and send me the WhatsApp. I'll send you the link. Can you please tell me the different types of product mix, like raw materials, etc. Product mix we have already discussed यार. ये सारा हमने product mix ही discuss किया है. अगर कोई doubt होगा तो आप मुझसे specific एक चीज you people can ask me. ट्रेडमार्क अलग होता है ब्रांड अलग होता है ब्रांड में ब्रांड नेम आता है एक अम्ब्रेला हो गया उसके अंदर डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं एक ब्रांड नेम आता है ट्रेडमार्क हो गया सिंबल ब्रांड नेम हो गया नाइकी उसका सिंबल होता है राई ऐसे तो दिस इज द ट्रेडमार्क दोनों में डिफरेंस है any other doubts to anyone I'll be sharing the PDF don't worry and any one of the students once these students join in just resend those PDFs so that these people can see so there would be including today's there would be 6 PDFs so आप पहले के पांचों PDF कोई भी एक बंदा जब ये बच्चे सारे आज वाले ज्वाइन कर जाए आफ्टरनून तक उसको दोबारा रीसेंड कर दे दैट्स इट any other doubts to anyone no so now just tell me what do you understand yeah what do you understand by product tangible और intangible में difference क्या होता है अगर हम बात करते हैं product की तो any one student what is the difference between tangible and intangible product I'll wait for 2 minutes what is the difference between tangible and intangible कोई भी बच्चा please anyone tangible और intangible का मतलब क्या होता है and next question what is the difference basic difference between convenience good and specialty goods tangible and intangible anyone
सो टैंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जिसको हम फील कर सकते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल गुड्स कौन से हो गए? जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हम एक्सपीरियंस खुद करते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ intangible goods. Next we have shopping goods and convenience goods. Yes, good for you. Next, fine, good. So next was what is the difference between convenience या फिर सबके एग्जाम convenience goods and specialty goods. Very good, Ayush. Very good, Himanshu. Okay, so what are the next question? What are the three types of थ्री प्रोडक्ट के कितने हमारे पार्ट्स क्या है प्रोडक्ट्स के? देयर आर थ्री अंदर के उसके अंदर के प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन से तीन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? कोर प्रोडक्ट, नेक्स्ट कोर, ऑगमेंटेड, सिंबॉलिक। तो कोर प्रोडक्ट का एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ कोर प्रोडक्ट? यस आयुष, गुड विवेक। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कोर प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा? No, no, I'm not talking about. I'm talking different parts. Core product, augmented and symbolic. Basis क्या है हमारे products? वो तो हमने different types of products हो गया. Very good. Augmented में क्या होगा? Symbolic. आयुष, we are talking about different उसके प्रोडक्ट के कितने वो होते हैं। एक होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट का क्या अंदर का बाइफरकेशन क्या है? कोर प्रोडक्ट होगा, उसके बाद हमारा ऑगमेंटेड आएगा, फिर स्पेशलिटी आएगा। आई सेंड यू द पीपीटी, रिवाइज करो सारी चीजें एंड you'll अंडरस्टैंड। सो चलो स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।
I'm leaving, ma'am. I'm done for today.